सबको जय मसीह की वेलकम टू अ brand new month and the beginning of month of February where we start at the feet of the Lord Jesus. सबको जय मसीह की और एक नए महीने की शुरुआत में फरवरी महीने की पहली तारीख में हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए हैं. This is our prayer and desire that as you listen every day the word of God through Dainik Vachan, it will edify you, it will challenge you and make you discover the plan of God and the purpose in your personal life. और ये हमारी प्रार्थना और हमारी इच्छा है कि हर दिन जब आप दैनिक वचन में परमेश्वर के वचनों को आप सुनते हो, ये वचन आपके जीवन को आत्मिक रीति से मजबूत करने पाए, आपको बढ़ाने पाए. God has got a plan for your life. और परमेश्वर ने आपके जीवन में एक योजना को रखी है. His plans and thoughts are greater than what the situation may be telling you. और उनकी योजना और उनके विचार हमारी परिस्थितियों से भी बढ़कर है. We walk by faith, not by sight. हम विश्वास से चलते हैं, ना कि दृष्टि से चलते हैं. That is why we are called believers. इसीलिए हमें विश्वासी कहा गया है. Gratitude is what you offer unto God when God has done something. और ग्रैटिट्यूड या फिर धन्यवादित का हृदय जहाँ पे परमेश्वर ने जो हमारे लिए किए उसके प्रति हम प्रभु को धन्यवादित हम हो जाते हैं. But praising God is offering thanks unto God in expectation of what He is going to do. और प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना जब हम करते हैं या प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, इसका मतलब जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में करने जा रहा है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार होते हैं. Often when we take a step of faith and God reveals the second step. और जब हम विश्वास के साथ कदम को हम आगे बढ़ाते हैं तब परमेश्वर दूसरे कदमों को आगे बढ़ाते हैं. And I believe that this month is going to be a month full of miracles, breakthrough. You discover the purpose, dream and the vision that God has planted in your heart. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये महीना चिन्ह और चमत्कार और स्वप्न और दर्शन को पूरा करने वाला महीना होगा और जो कुछ भी स्वप्न और दर्शन को आपने रखा है परमेश्वर से पूरा करेंगे. Let's just look into one of the Old Testament passages from 2 Samuel chapter 23 verses 11 and 12. आइए पुराने नियम से हम एक गद्यांश को पढ़ेंगे. दूसरे सामुएल की किताब उसका 23वां अध्याय उसका 11 और 12. This passage talks about the mighty men of David. और यहाँ पे दाऊद के सामर्थी जो व्यक्ति था उसके बारे में कहा गया है. David had a very powerful army. और दाऊद के पास बहुत ही मजबूत सैनिक थे. He himself was a great fighter, warrior. और दाऊद खुद एक योद्धा था. And the time that he was running from place to place, hiding from Saul. जिस वक्त दाऊद एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को छुपाते फिर रहा था साउल की वजह से, There were many people joined with him. और उस वक्त बहुत सारे लोगों ने दाऊद के साथ जुड़ गए. There were around 400 men. जहाँ पे 400 जो पुरुष उनके साथ जुड़े. They were not initially trained men. और वो शुरुआत में बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ में नहीं थे. They were debtors, they were failures in their life and disgruntled people, unhappy people. They were the one who came and joined with David. और वो 400 जो लोग थे जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं थे, बहुत ज्यादा तैयारी किए हुए नहीं थे, लेकिन वो कर्जदार थे और जीवन में असफलता को पाए हुए लोग थे, वही लोग थे जो दाऊद के साथ वो जुड़ गए. But when the kingdom came to David, when David became the king, और जब साम्राज्य दाऊद के हाथ में आया और दाऊद राजा बन गया, he started appointing some of the mighty men, the finest people in his palace as the most powerful men. और उस वक्त दाऊद ने राजा बनने के बाद अपने राज्य में ऐसे वीर और शूरवीर योद्धाओं को उसने नियुक्त किया ताकि उसके साथ रहे. He had 3 powerful men with him. और दाऊद के साथ 3 जो शूरवीर थे. And one of the mighty men caught my attention. और एक जो शूरवीर ने मेरे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित किया. 2 Samuel chapter 23 verses 11 and 12. And after him was Shammah the son of Agi the Hararite. And the Philistines were gathered together into a troop where there was a piece of ground full of lentils. And the people fled from the Philistines. But he, that talks about Shammah, stood in the midst of the ground and he defended it and slew the Philistines, and the Lord brought great victory. और 11 और 12 वचन जब वो पढ़ते दूसरे सामुएल 23वां अध्याय इस प्रकार से कहते, उसके बाद आगे
नाम एक पहाड़ी का पुत्र सम्मा था। फिलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहाँ मसूर का एक खेत था और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने मतलब सम्मा ने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और फिलिस्तियों को मार लिया और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। खेत के मध्य में खड़े होकर उसको बचाया। He stood in the midst of the field and defended it. और सम्मा खेत के मध्य में खड़े होकर उनको बचाया। What made Shammah to become one of the topmost generals in the palace in the army of David? और कौन सी बात थी जिसकी वजह से सम्मा को दाऊद के राज्य में एक बड़े औहदा पे, एक बड़े सिपाही या फिर सूरबीर की उस जगह या पद को दिया गया? What made David to choose Shammah? दाऊद ने क्यों सम्मा को चुनाव किया एक अगुओं के रूप में? The answer is very simple. और उसका उत्तर बहुत ही साफ है। The enemies, the Philistines, wanted to take all the harvest. और जब फिलिस्ती के जो शत्रु थे आके सारे खेत के फसल को ले जाना चाहते थे, It was a time the Israelites were going for harvest and they had a bountiful harvest. और एक समय था जहां पे इजरायली उस बहुतायत की फसल को काटने का समय था और उस वक्त इस फिलिस्तीन लोग आए And Philistines wanted to take all those blessings. और उन सारे आशीषों को फिलिस्ती के लोग उन्हें ले जाना चाहते थे। But Shammah, लेकिन सम्मा he stands alone in the middle of the field. लेकिन सम्मा उस खेत के मध्य में अकेला खड़ा होकर उनका सामना He किया। had the courage and the guts to say, this blessing is for me and to my family and for my people. I am not going to surrender this blessing to the enemy. और उस वक्त सम्मा ने इस बात को समझ लिया कि जो आशीष है ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे देश के लिए, और मैं नहीं चाहता कि शत्रु इसके ऊपर अपना अधिकार को रखे। He did not know that time. और उस वक्त वो नहीं जानता था That particular incident is going to decide his future, his promotion, his greatness. और सम्मा को ये पता नहीं था कि उस प्रकार की घटना जो घट रही थी उसके जीवन में, और वही घटना उसके जीवन में पदोन्नति और उसके जीवन और उसके भविष्य को आगे बढ़ाने का कारण बनेगा। It was a do or die moment for Shammah. और उस समय सम्मा के लिए मरो या मारो का परिस्थिति था। There were nobody around him, nobody was with him. और उसके साथ कोई नहीं था, सम्मा अकेला खड़ा था खेत के A बीच में। vast army wanted to destroy him and take the blessing. और एक बड़ी सेना सम्मा को मार के उस खेत को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। Loneliness, अकेलापन, pain and suffering. दर्द और पीड़ा, But he stood in the midst of the ground. लेकिन सम्मा उस खेत के मध्य में खड़ा हुआ। He would have thought to give up like anybody else. और उसने भी शायद सोचा होगा कि बाकी लोगों के समान वो भी हार मान जाए, But something in him said, लेकिन उसके अंदर से कुछ तो बातों ने उसको मजबूर किया। I am not going to give up my dream. मैं अपने स्वप्न को लेके मैं हार नहीं मानना चाहता। I am not going to surrender this blessing in the hand of the enemies. और मैं नहीं चाहता कि शत्रु इस आशीष के ऊपर अपने अधिकार को रखे। This is the ground, this is the place that God has planted me. और यही जो खेत है, यही जो जगह है जहाँ पे परमेश्वर ने मुझे रोपा है। And I am going to stand firm, not giving up and face the challenge. और मैं यहाँ पे स्थिर खड़ा रह के मैं शत्रु का सामना करूंगा और उनका चुनौती का मैं उत्तर दूंगा। Friends, I do not know what you are going through in your personal life right on the 1st of February. दोस्तों, मैं नहीं चाहता इस फरवरी महीना की पहली तारीख में आप किस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहे हो। There can be lonely hours, हो सकता है आपके जीवन में अकेलापन का समय, fighting financial crisis, sickness in your body, questions in your mind. हो सकता है कि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो, आप आपके जीवन में आप बीमारी से जूझ रहे हो, And you feel so inadequate. How am I going to face this challenge? और अपने आप उस परिस्थिति में आप बहुत छोटा महसूस करते हो और कहते हो कि मैं कैसे इस चुनौती का मैं सामना कर At सकूंगा। times God puts you in a place where nobody will be able to help you other than God himself. और कई बार परमेश्वर हमें एक ऐसे परिस्थिति में रखते हैं जहाँ पे परमेश्वर को छोड़ हमें कोई मदद नहीं कर सकता। You know, when God
was talking to Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें कर रहे थे, he was telling Abraham, come out of your tent. अब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू अपने तंबू से बाहर आ। The tent ceiling was just 8 feet long tent ceiling. और जो उस तंबू का जो सीलिंग था, छत था, सिर्फ 8 फीट ही था। That is all he could see. और वही तो अब्राहम देख सकता है आंखों को उठा के। But God says, you have been looking at this 8 feet tent all along. जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तू 8 फीट का इस छत को, तू अपने तंबू को देख रहा है अकेले, Come out, Abraham. अब्राहम तू बाहर आ तंबू से। I just want to show you something much bigger than what you have been seeing lifelong. तब परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि तू बाहर तो आके देख, जिसको तू देख रहा है जिंदगी भर, उससे भी बढ़कर कुछ चीजों को मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। God wants to do the same in your life and in my life. और परमेश्वर वैसा ही तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में करना चाहते हैं। God wants to tell you, I want to bless you, I want to be with you, I want to fight your battle. और परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं आपके साथ में रहूंगा और आपके लड़ाइयों को मैं अपनी लड़ाई करके लड़ूंगा। If you only don't give up the very place where you are. यदि आप सिर्फ हार नहीं मानते हो जिस जगह पे आप रहते हो, Don't limit God. आप परमेश्वर को सीमित ना करें। People would have left you. शायद लोगों ने आपको छोड़ दिया। Situation may look like impossible. हो सकता है कि परिस्थिति आपके लिए असंभव सी जान पड़ती You है। may feel like giving up because of the present situation and the crisis that you are walking through. और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के हार मान जाए, क्योंकि आप जिस प्रकार की परिस्थिति से होके आप गुजर रहे हो। But if you hold on to the ground, लेकिन यदि आप उस खेत में आप बने रहे, स्थिर रहे, the present suffering is nothing comparable to the glory that's going to be revealed in Jesus' mighty name. और वर्तमान के दुख और तकलीफ को जो झेल रहे हो, जो आने वाले जो महिमा है, आने वाले जो परमेश्वर ने जो बड़ा चीजों को रखा है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। If you do not give up, that's what the Bible says, there is something called due season, you will reap the harvest. इसी तो बाइबल कहती है यदि आप हार ना मानो तो आप सही समय पे कटनी को काटोगे। When Shammah was picked up by David to become the third most powerful man in the palace, और सम्मा को जब दाऊद के द्वारा चुना गया, उसके महल में तीसरा जो सूरवीर के नाम से, he would have walked down back to the memory lane. और उस वक्त शायद सम्मा ने वापस जाके सोचा होगा उन सारे दिनों के बारे में। It was that particular moment ये उस दिन था, वो घटना घटी थी तब where everybody left me. जहाँ पे सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। Nobody was with me. मेरे साथ कोई नहीं था। I was fighting the Philistines all alone. मैं फिलिस्तीयों से अकेला लड़ रहा था। Because of one reason. उसका एक ही कारण, That field full of lentils. क्योंकि वो जो खेत जो थे, वो खेत तो दाल से भरे हुए थे। And I did not want to give up. और मैं हार माना नहीं चाहता, उसको देना नहीं चाहता। That particular incident, that particular place brought me where I am now. और वही घटना ने और वही स्थान ने आज मुझे इस पद पे लेके आया है। Friends, if you ever feel like giving up this morning, दोस्तों आज की सुबह आपको ऐसा लगता है कि मैं तो हार मान गया हूँ, it's time to revisit that moment that you had fought your lion, your giant, impossible situation, and come to this point right now where you are. और आपको वापस उन दिनों के बारे में सोचना है जहाँ पे आपने सिंह और भालू से आपने लड़ाई की, आपने चुनौतियों का आप सामना किया, और आज फिर से आप इस मुकाम पे आए हो। आपको सोचने की जरूरत है। At times the way to move forward is that you go backward and think what the Lord has done. और कई बार हमारे जीवन में परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हम आगे बढ़ने से पहले हम पीछे मुड़ के हम देखें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया, उन बातों को स्मरण करके फिर हम आगे बढ़ सके। I wonder Abraham would have ever gone back to Mount Moriah where he had the tense moment where the Lord asked him to offer his son as a sacrifice with a driven knife. A loud voice from the heavens says, Abraham, now I know you love me and I'm making this covenant with you. मैं ये सोचता हूँ कि अब्राहम ने भी शायद अपने जीवन में उन दिनों के बारे में सोचा होगा जहाँ पे अब्राहम ने मोरिया पर्वत पे अपने इकलौते पुत्र को लेके बलि करने के लिए गया, और जब उसने छुरी निकाल के उसने अपने पुत्र को बलि करने के लिए तैयार हो गया, तब एक आवाज आई और कहा कि हे अब्राहम, अब मैं जान गया कि तुम मुझसे प्रेम करता है। I wonder if Jacob ever revisited river Jabbok where he wrestled with God. That lonely moment, he had to put everything on hold
crying to God, where his brother wanted to kill him. His father-in-law was chasing him. And that was the moment God blessed him. और मैं ये सोचता हूँ याकूब के बारे में, जहाँ पे वो अपने जान को बचा के अपने भाई से भागते रहता है और जेपा के नदी के सम्मुख में जाके परमेश्वर के साथ में मल्ल युद्ध करता है। और तब याकूब ने अपने जीवन में उन सारे परिस्थिति, उन सारे घटनाओं के बारे में याद किया होगा। Think of Moses. मूसा के बारे में, While he was leading the Israelites in the wilderness, जब मूसा ने इजरायलियों को मरुभूमि से लेके जा रहा था, I'm sure he would have crossed that burning bush desert. और मैं जानता हूँ इस बात को कि शायद मूसा ने भी उस जड़ती हुई झाड़ी का अनुभव से होके गुजरा। Things would have popped up in his mind. शायद उस समय उसके मन में विचार आया, This was that hour. यही जो समय था जलती हुई झाड़ी, I had an encounter with God, जहाँ पे मैंने परमेश्वर के साथ आमने सामने where मुलाकात की, everything changed my life. जहाँ पे सब कुछ बदल गया मेरे जीवन की। It was that lonely moment. और ये जो अकेलापन का समय था उस जलती हुई झाड़ी में, I had an encounter with God. और उस वक्त मैंने परमेश्वर के साथ मुठभेड़ की, And that changed my life forever. और वही मुठभेड़ मेरे जीवन को बदल दिया। Think of David. दाऊद के बारे में जब सोचे, In the valley of Elah, where he had to fight a 6 feet giant called Goliath. और जहाँ पे इला की उस घाटी में उसने 6 फुट का गोलियत के साथ उसने सामना किया। We all have that moment in our life और हम सबों के जीवन में एक ऐसे समय थे, ऐसे घटना घटी थी, that changed everything. जिस परिस्थिति ने, जिस घटना ने हमारे जीवन को बदल डाला। It is time to tell us. और ये जो समय है अपने आप को बोलने के लिए, God did it in the past. प्रभु ने बीते दिनों में किया था, He will do it again. प्रभु फिर से करेगा। I am not going to give up. My dream, my vision, passion, it's not for sale. और मैं अपने दर्शन में, अपने सपन को, मैं अपने समर्पण को मैं बेच नहीं सकता। ये बेचने के लिए नहीं है। Others would have given up. शायद दूसरे लोगों ने इन बातों को लेकर हार मान लिया, But this is my field. लेकिन ये तो मेरा खेत है, This is my possession. ये तो मेरा संपत्ति है, This is my dream. This is my vision. I am going to defend it like Shammah. ये तो मेरा सपना है, ये तो मेरा दर्शन है, और मैं सम्मा के जैसे इसके बचाव के लिए मैं सामना करूंगा। Even it may look like absurd, not fitting to human logic. हो सकता है कि अपने विचार के अनुसार ये तो संभव नहीं है, ऐसा लग सकता है। Nothing seems to be happening. कुछ तो नहीं हो रहा। Faith is taking the first step before God reveals the second step. अब विश्वास, जो हम पहला कदम लेके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा कदम जहाँ पे परमेश्वर सारी बातों को प्रकट करता है। That's what the Lord asked Noah. तो ऐसे ही तो नोआ से परमेश्वर ने कहा, Noah, you build the ark first. और परमेश्वर ने नूह से कहा कि नूह तू पहले एक जहाज बना। If Noah says, यदि नूह ने कहता, let all the animals come and stand next to me, then I'll believe what you're saying is right. यदि प्रभु सारे जो जानवर है मेरे आसपास आके खड़े हो जाए, उसको देखूंगा, तब मैं जहाज को बनाने के लिए मैं शुरू करूंगा। That doesn't work that way. यदि ऐसा होता तो ऐसा काम नहीं चलता। Think about Elijah in Mount Carmel. और एलिया के बारे जब कार्मेल किस पर्वत पे, He did not say, Lord, show me some fire, then I'll start building the altar. और उसने ऐसा नहीं कहा प्रभु कुछ आग को दिखाए तब मैं इस वेदी को मैं तैयार करूंगा। He built the altar and the Lord sent the fire. और एलिया ने उस वेदी को तैयार किया और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसाया। Think about the widow who had nothing in her house. उस स्त्री के बारे में, जो स्त्री के बारे में सोचे जिसके पास कुछ नहीं था घर पे, Empty vessels. खाली बर्तन, When she obeyed the Lord in faith, लेकिन जब विश्वास के साथ उसने परमेश्वर के दास की बात को माना, God did the rest of the miracle. और परमेश्वर ने बाकी चमत्कार का काम परमेश्वर ने किया। Are you in a field surrounded by enemies? क्या आप उस खेत में हो जहाँ पे आप शत्रु से घिरे हुए हो? It's time to defend your field. ये समय है कि आप अपने खेत की सुरक्षा करें, Defend your dream, आपके सपनों की सुरक्षा करें, your vision, आपके दर्शन की सुरक्षा करें। not just to give up. सिर्फ हार ना मान ले। Stop blaming other people if people helped you or not helped you. लोगों को दोष देने की जरूरत नहीं यदि उन्होंने आपको मदद किया नहीं किया। Your help comes from the Lord. आपका सहायता और मदद तो परमेश्वर की ओर से आती Your है। strength, your anointing, everything comes from the maker of the heavens and the और earth. आपका सामर्थ और आपका अभिषेक उस परमेश्वर की ओर से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। If you ever felt like giving up, यदि आपने कभी भी ऐसा सोचा कि मैं तो हार मान गया, read this passage again. इस गद्यांश को आप फिर से पढ़िए। Shammah समा के बारे stood
in the midst of a lentil field और उसने उस मसूर की खेत में अकेला खड़ा हुआ and fought the Philistines. और उसने फिलिस्तियों से लड़ाई की And he did not know और वो नहीं जानता था इस बात को that incident is going to be connected to his future. क्योंकि उस खेत में फिलिस्तियों से लड़ने की वो घटना उसके भविष्य को बदल देगी, इस बात को सम्मा नहीं जानता था। Friends, whatever you are doing right now, दोस्तों आज जो कुछ भी आप कर रहे हो it is connected to your future. और आपका भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। The battle you fight, जो लड़ाई को आप लड़ते हो, the lonely moment that you struggle in pain, जहाँ पे आप अकेलेपन से आप संघर्ष करते हो, you want to hold on to your faith, और आप अपने विश्वास की रक्षा करना चाहते you हो, want to protect the God-given vision and the dream, और परमेश्वर के द्वारा दिए गए स्वप्न और दर्शन को आप सुरक्षित रखना चाहते हो, it matters to God. ये परमेश्वर के लिए मायने रखता है। Bow your head wherever you are. आप जहाँ कहीं भी अपने सरों को झुकाएं, If you feel like kneeling down, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं घुटने टेकूं, just want to lift up your hand to God. और मैं अपने हाथों को परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा So करूं, Lord, here I am. प्रभु से कहूं कि प्रभु मैं यहाँ हूँ। On the 1st of February, इस फरवरी महीना का पहली तारीख, पहली सुबह, I feel weak, I feel tired, I feel exhausted, प्रभु मैं तो अपने आप को कमजोर समझता हूँ, थका हुआ, हारा हुआ समझता I हूँ, feel so lonely, मैं अपने आप को अकेला महसूस करता but I हूँ, need your help, Lord. लेकिन प्रभु मुझे आपकी मदद की जरूरत है। Hold my hands, Lord. प्रभु मेरे हाथों को थामे प्रभु, I need your hand upon my life. प्रभु आपके हाथ को मेरे उस सर के ऊपर मुझे चाहिए। I'm going to stop complaining and start believing. ओ प्रभु मैं निंदा करना नहीं, लेकिन मैं विश्वास करना शुरू करूंगा। If God is for me, who can be against यदि me? परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? I'm going to be the protector of the field that God has given to me. और मैं जो परमेश्वर की ओर से दिए हुए खेत की मैं रक्षा करने वाला बनना The चाहता हूँ। place of ministry is your field, my friend. दोस्तों जहाँ पे आप सेवकाई करते हो वो आपके सेवकाई के खेत है। The job that God has given to you, that is your field. अब जो नौकरी परमेश्वर ने दिया है वो आपके लिए खेत है। The place where you are right now, that is the field that God has kept you. और जिस जगह पे आज आप हो वो परमेश्वर ने आपको खेत के रूप में दिया है। Hold on to that. आप उसमें बने रहे। Fight the battle, good fight. आपने लड़ाई को लड़ी और अच्छी कुश्ती को लड़े। God is for you. प्रभु आपके साथ है। God is with you. और परमेश्वर आपके साथ में है। Let's pray together. आइए एक साथ हम प्रार्थना करें। Father, in Jesus' mighty name, पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से we come to your presence. आपकी उपस्थिति में आते हैं। The good work you have started in our life, you will bring it into completion. प्रभु जो अच्छा काम प्रभु आपने हमारे जीवन में शुरू किया है उसे आप पूरा करोगे। Your promises are always yes and amen through Christ Jesus. ओ प्रभु आपके हर एक वायदा मसीह यीशु में हाँ और आमीन है। There is always something called due season in your kingdom, Lord. ओ प्रभु आपके राज्य में हमेशा एक सही समय और सही ऋतु करके कहा गया है। And the just shall live by faith. और प्रभु धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। We believe every word that you have spoken is the truth. ओ प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हर एक वायदा जो प्रभु आपने हमारे जीवन के बारे में बोला वो सत्य है। It will surely come to pass. और ये सारे वायदा सचमुच में प्रभु ये पूरी होंगी। I pray for those who are fighting their lonely battles. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो अकेले अपने जीवन में लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। Where there are hundreds and thousands of people waiting to destroy them. जहाँ पे प्रभु 100 और हजारों की तादाद में लोग उनके जीवन को नाश करने के लिए God तैयार will हैं। be the strength of their life. वो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी सामर्थ बनने पाए। You will be the ever-present help for them, Lord. वो प्रभु आप ही उनके जीवन में प्रभु कठिन समय में सहायक बन के खड़ा रहिए। That they would be able to defend the dream and the vision that you have planted in their heart. ताकि परमेश्वर स्वप्न और दर्शन को प्रभु जो आपने उनके हृदय में आपने बोया है डाला प्रभु उसकी वो रक्षा कर पाए। Be with them, Lord Jesus. प्रभु हर एक के साथ में रहिए प्रभु। Pray for those who have birthdays and wedding anniversaries. प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनका जन्म दिवस और शादी की सालगिरह है। Also for those who have to make important decisions of their life today. और प्रभु उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो आज अपने जीवन के अहम प्रभु फैसलों को करने के लिए तैयार है। Counsel them, guide them. प्रभु उन्हें सलाह दीजिए प्रभु आप उन्हें अगुवाई कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।